In office, there are many tasks, and the person who is responsible for doing this all activities is a office manager. So, which role he played in office, we'll discuss today. He plays a very vital role in office or in business, as we know that office is a system, subsystem of business, whole business. And office manager performs various activities in office. So office manager also called as administrative service managers. He is a business professional. He is responsible for performing diverse set of administrative tasks, whether it may be related with a payroll of employees, hiring of some required new employees, and for that purpose, office manager must perform their duties with decisiveness and accuracy for a business to perform well. Decisiveness means what? He must take some needed decisions. He must take decisions which is beneficial to the business organization, and his decisions are accurate, must be accurate. उसके डिसीजंस जो है एक्यूरेट होने चाहिए। जो कुछ भी वो काम कर रहा है, उसकी ड्यूटीज है, परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटीज अच्छी तरह से उसने परफॉर्म करने चाहिए। उसकी डिसिसिवनेस जो एबिलिटी है अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। When decisions are required, when this function is going into the act, when it is required to take a decision, if you have some alternatives, if you have more than two alternatives, then it is necessary to take a decision regarding choose one from available two alternatives. And so that the ability of taking decision is a very important, and office manager must have this ability. He must perform their duties with a decisiveness and accuracy. If office wants some employees, then it is necessary to perform an activity of recruitment, and for that purpose the office manager is the person who can take the decision regarding the selection of clever employees, selection of accurate employees for doing accurate tasks, from doing some task. It means that he must perform some staffing functions, है ना? Like recruitment, selection. If some employees need training, it is necessary to schedule the trainings of employees, and it is a duty of office manager. So office manager play a very important role in system and procedural work. The duties
in the office are very wide, and it is different from organization to organization. It is depend on the size and type of organization, है ना. जो कुछ भी ड्यूटीज है ऑफिस में, ऑफिस मैनेजर्स की जो ड्यूटीज है, वो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. In this slide, I have given one example about the duties of medical office manager. Medical office manager may be required to treat patients, set appointments, and handle billings of different parties. है ना. यहाँ पर मेडिकल ऑफिस मैनेजर है, उसकी जो ड्यूटीज है वो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसी के हिसाब से उसकी ड्यूटीज होती है. तो किसी भी मेडिकल ऑफिस मैनेजर की ड्यूटीज देखो क्या होगी. एक तो वहां पर उसके लिए ये पेशेंट्स होना जरूरी है. सॉरी, पेशेंट को ग्रीट करना, वेलकम करना उनका, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है. अपॉइंटमेंट सेट करना, ये भी उसकी ड्यूटी है. और बिलिंग का, जो किसी को डिस्चार्ज किया उसका बिलिंग तैयार करना, बिलिंग प्रोवाइड करना, बिलिंग के रिसिप्ट तैयार करना, इनवॉइसेस तैयार करना, ये सभी ड्यूटीज एक मेडिकल ऑफिस मैनेजर की होती है. ओके. While manager working within a corporate office may be focused exclusively on one aspect of business, such as insurance processing, duties also might include evaluating office procedures and looking for more efficient ways of conducting processes. है ना. अगर किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस की हम बात करें तो वहां पर उसकी जो ड्यूटीज है ऑफिस मैनेजर्स की, it is quite different from a medical office manager. So the duties are significantly different in different organizations. It is depend on the nature and size of organization. Office manager must be adept of supervising other employees in fair, consistent manner. It means that this sentence indicates that the man who performs the duty of office manager must be adept. Means he must have some qualities. He must have some skills. He must have a cleverness of supervising other employees in fair and consistent manner. In fair manner means there is no differentiation between employees. He must treat every employee in same manner, in fair manner. Okay. They must have the ability to motivate others, encouraging them to increase both productivity and quality. एक ऑफिस मैनेजर कैसा होना चाहिए? ऑफिस मैनेजर must have ability of motivation. What is motivation? Motivation is the process of stimulating someone to do some work, to do work effectively, to do work efficiently. अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले मोटिवेशन का, तो वहां पर मोटिवेशन हम किसे कहेंगे? अगर हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं, क्लास चालू है, वहां पर हमने एग्जाम कंडक्ट किया, एग्जाम में जिन स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स आए हैं, बोल दो क्लास में, हाँ विशाल गॉट मैक्सिमम मार्क्स, वेरी नाइस विशाल. Vishal can do
बेस्ट इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन आल्सो, है ना। अगर हम किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे, वो अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छा किया है इसलिए उसे अगर कहा गया कि हाँ तू अच्छा कर रहा है, तो उसे एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें ये करना है, मुझे और अच्छा करना है। किसी को अगर हम कहते यस यू कैन डू दिस, देन ही कैन डेफिनेटली डू दिस बिकॉज ही इज सेल्फ मोटिवेटेड, है ना। उसे अंदर से एक प्रेरणा मिलती है कि हमें ये करना है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो हम मोटिवेशन को कह सकते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन। मोटिवेशन दोनों प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है और नेगेटिव भी मोटिवेशन हो सकता है। चलो हमारे यहाँ पर एक मोटिवेशन से रिलेटेड एक जोक है जो मैं यहाँ पर क्रैक कर देता हूँ। नेगेटिव मोटिवेशन किस प्रकार का होता है? देखो, एक दौड़, एक रेस थी, दौड़ने की रेस। इसमें एक पार्टिसिपेंट, बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे। उसमें से एक पार्टिसिपेंट जो कि विनर हुआ। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जो विनर होता है उसे उसके सक्सेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आखिरी में जब विनर घोषित किया उस पार्टिसिपेंट को, तो उसे कमेंटेटर ने पूछा कि भाई आप बहुत अच्छे दौड़े, आपने विनिंग हासिल की है, आप विन हुए हो, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था या आप क्या सोचकर दौड़ पड़े जो आप विनर बन गए? तो उसने कहा तो ये मोटिवेशन जो है मुझे अंदर से था, मैं ये काम कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जब मैं भाग रहा हूं तो मेरी जो वाइफ है मेरे पीछे लगी हुई है, जिसके हाथ में एक डंडा है, और वो मुझे मेरे पीछे लग गई है। उससे बचने के लिए मैं जिस ताकत से भागना चाहता था, उस ताकत को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो सोच रहा था अपने वाइफ से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे सक्सेस मिल गया। उसने एज्यूम किया कि चलो जान दो कुछ भी हो, ये एज्यूम करते हैं और भागते हैं। उसे बचना था वाइफ से, ये सोचकर वो दौड़ा और विनिंग हासिल की। यहाँ पर एक मोटिवेशन, नेगेटिव प्रकार का मोटिवेशन है, लेकिन मोटिवेशन का कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पर है ना। तो उसी प्रकार अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है तो इस प्रकार हम पॉजिटिवली भी कर सकते हैं। किसी को हम प्राइज देकर, अवार्ड्स देकर मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को हम दंड देकर, पनिशमेंट देकर मोटिवेट कर सकते हैं। तो वहां पर हम कैरेट एंड स्टिक थ्योरी का यूज करते हैं हम मोटिवेशन के लिए। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, किसी को दिखाना। हाँ यस, बोलो बेटा। सर जो हाँ, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? बोलो विशाल। हाँ सर, जो निगेटिव मोटिवेशन है मतलब वो हम उसे अलग तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं ना। यस यस यस, नेगेटिव जस्ट बोले लाइक तो क्या है मालूम है क्या? नेगेटिव बोले तो हमें तो अचीव करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अचीव करना है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कुछ पनिशमेंट देना, कुछ उसे कुछ शिक्षा करना, इससे भी हम नेगेटिव बोले तो हम वो वर्क कर सकते हैं। अगर हमने कहा कि अगर आपको इतने मार्क्स नहीं गिरे तो हम आपको फेल कर देंगे। अगर आप अटेंटिव नहीं है, यहाँ पर क्लास पर अटेंटिव नहीं है, अगर मैंने विशाल का नाम लिया और विशाल ने उधर से रिप्लाई नहीं किया, तो मैं ये कह सकता हूँ विशाल अगर आप अटेंटिव नहीं है क्लास में तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। ये है नेगेटिव मोटिवेशन, इसको हम नेगेटिव मोटिवेशन कहेंगे। कि विशाल को वहां पर मालूम है कि अगर मैं अटेंटिव नहीं है क्लास में तो सर मुझे रिमूव कर सकते हैं। ही कैन अटेंड क्लासेस
एक्टिवली, है ना। तो इस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन यहाँ पर काम में आता है। ओके, थोड़ा सा रूट चेंज हुआ था हमारा। ओके, मोटिवेशन की बात आई थी, तो हम मोटिवेशन का जो फंक्शन है, एबिलिटी है, वो होनी चाहिए एक किसी भी हमारे ऑफिस मैनेजर में। Then supervisory duties may include hiring employees and resolving disputes or other issues that arise among employees. Within sales offices, office manager may track the sales force, reporting monthly sales numbers, and noting areas in need of improvement. अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक जो ऑफिस मैनेजर है, ऑफिस मैनेजर की एबिलिटीज क्या होनी चाहिए, इसमें दिखाई गई कि उसे सुपरवाइजरी ड्यूटी भी निभानी है, उसे एम्प्लॉइज भी हायर करने हैं, तो ही इज परफॉर्मिंग मल्टी टास्क, है ना। ही इज परफॉर्मिंग मल्टीपल एक्टिविटीज, many activities he is performing. He is a supervisor, he is a recruitment officer, he is a dispute solver. Means if there is any disputes arises in the employees, तो ऑफिस मैनेजर जो है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि he can resolve these disputes। तो जो एम्प्लॉइज है उनमें अगर कुछ वजह से कुछ डिस्प्यूट है, कुछ कला है, उनमें कुछ कंफ्यूजन्स है, तो उन कंफ्यूजन्स को दूर करना भी ऑफिस मैनेजर की ड्यूटी है, और इसे भी ये भी एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। इस प्रकार का भी रोल उसे यहाँ पर ऑफिस का जो कार्य है उसमें करना है। देन इन एडिशन, यस सर हाँ यस सर वो प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना एक बार। ओके ओके, हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, उसमें वो देखो लास्ट थर्ड लास्ट में ऑफिस मैनेजर्स में ट्रैक द सेल्स फोर्स, उसका मतलब क्या है? सेल्स फोर्स, ट्रैक द सेल्स फोर्स, इसका मतलब है कि अगर हम देखते हैं कि एक ऑफिस है, ऑफिस मैनेजर जो है अलग अलग जो रोल है वो प्ले करता है। तो अगर और जो सेल्स ऑफिसेस है, कुछ अगर सेल्स ऑफिसेस का यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि ऐसा कि वहाँ पर अगर कुछ सेल्स फोर्स है, तो कहाँ पर हमारा सेल्स कम हुआ है, अगर हमने सेल्स का जो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है वो अलग अलग टेरिटरी में हम सेल्स कर रहे हैं, तो वहाँ से उनका मंथली कितना सेल हुआ उसके नंबर्स लेना, और उससे हमें ये पता चलता है कि किस एरिया का परफॉर्मेंस कैसा है, किस सेल्समैन का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सी टीम अच्छी कर रही है। ओके, तो ऐसे सेल्स फोर्स को ट्रैक करना कि जिनका जो काम है वो अगर इनएफिशिएंट है, तो उनमें जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है, कौन कौन से ऐसे टास्क फोर्स है जिनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसे फाइंड आउट करना। ये इस स्लाइड इस जो लास्ट सेंटेंस है उसमें बताया गया है। ओके, आर यू सेटिस्फाइड विशाल? Yes sir, satisfied. Okay. In addition to overseeing personal, office manager ensure the smooth functioning of a business. अब पर्सनल तो टास्क करता ही है, जो कुछ भी ऑफिसेस के वर्क है वो उसके पर्सनल वर्क्स हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा और कुछ ज़्यादा फंक्शंस उसे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑफिस मैनेजर within a healthcare facility may be called upon to order general supplies like paper, pens, and toner, as well as medical supplies such as medicine or vaccination from specific vendors. अब अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटी का जो ऑफिस मैनेजर्स है, अगर उनका जो मेन काम है, उसे मैंने पहले आपको बताया कि मेडिकल ऑफिस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनकी ड्यूटीज क्या होती है, ज़्यादातर पेशेंट को अच्छी तरह से वेलकम करना, ग्रीट करना, अपॉइंटमेंट लेना, और जो कुछ बिलिंग वगैरह है वो करना। इसके साथ साथ उससे और कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करने होते हैं ऑफिस में,
तो उस फंक्शंस को यहाँ बताया गया है कि इसे ये भी देखना है कि जो पेपर रिक्वायर्ड है, पेन्स रिक्वायर्ड है, क्या टोनर कम है, हमारा प्रिंटर अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके ऊपर भी उसे ध्यान देना है। कुछ मेडिसिन है या वैक्सीनेशन है, तो जो वेंडर्स है उनको उनको ऑर्डर करना, ये भी एडिशनल काम उसे करने होते हैं। अकॉर्डिंगली मैनेजर में भी रिक्वायर्ड टू रिसर्च सेवरल वेंडर्स। अगर वहाँ पर ऑर्डर्स दे रहे हैं तो वहाँ पर एक ऑफिस मैनेजर को ऐसी बोल आई मीन ऑफिस मैनेजर जो होता है उसे सर्च करना होता है कि कौन से वेंडर से हमें कम प्राइस में जो कुछ भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है वो मिल सकता है, उसका सर्चिंग करना, ठीक है, उसे फाइंड आउट करना, ये भी ड्यूटी उसे परफॉर्म करनी होती है। देन डिलीवरी डेट्स, कब किसको क्या देना है, अदर टर्म्स ऑफ सेल, सेल की क्या क्या टर्म्स है उसे भी उसे देखना है। इसका मतलब जो ऑफिस मैनेजर है ही शुड हैव सम ऑलराउंड क्वालिटीज, जो सब काम कर सकता है ऐसा आदमी वहां पर ऑफिस में होना चाहिए। ओके, with the increasing of use of computer system, as we know that in modern offices every offices uh, applied many computer system or they used many computer system। तो एक ऑफिस मैनेजर जो है, ऑफिस मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि उसे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। क्या मतलब, उसे जो हम कहते हैं कोहेसिवली पूरी होल इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है, अगर कहीं पर भी किसी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उसे भी सॉल्व करने की एबिलिटी एक ऑफिस मैनेजर में होनी चाहिए। इन स्मॉल ऑफिसेज दैट डोंट हैव देयर ओन कंप्यूटर सपोर्ट पर्सनल, अगर ऐसा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो वहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, कुछ सपोर्ट स्टाफ होता है, और टेक्निकल स्टाफ होता है। लेकिन अगर ऑफिस का जो नेचर है वो अगर स्मॉल है तो वहाँ पर एक भी काम, कंप्यूटर सपोर्ट पर्सनल का काम भी ऑफिस मैनेजर को करना पड़ता है। ओके, ही इज अ ट्रबल शूटर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसके बाद ये भी स्किल होना जरूरी है। इन लार्जर ऑफिस मैनेजर में ओवरसी द वर्क ऑफ टेक्निकल स्पेशलिस्ट, लार्जर में टेक्निकल स्पेशलिस्ट का वहाँ पर यूज हो सकता है, लेकिन जहाँ पर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये काम भी हमारा ऑफिस मैनेजर करता है। उसे कौन कौन से प्रॉब्लम अराइजेस हुए उसकी भी उसके ऊपर भी उसे ध्यान देना होता है। ओके, then some office manager may take on accounting responsibilities। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑफिस मैनेजर के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सेपरेट अकाउंटेंट अपॉइंट करने से अच्छा है कि चलो ऑफिस मैनेजर ही ओन सेल्फ ही कैन परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अकाउंटेंट, है ना। In this cases, office manager may be required to oversee payroll expenses, invoices send करना, process paperwork, and therefore might benefit from taking some accounting courses। अब अगर उसे ये काम परफॉर्म करना है ऑफिस मैनेजर को, he must have the knowledge about accounting। तो अकाउंटिंग की जो कुछ भी कोर्सेस है उनका नॉलेज भी उसे लेना होगा। तो ऑफिस मैनेजर कुछ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में can perform the accounting work also। An office manager may be required to monitor overtime, ensuring that expenses remain as low as possible, while another manager may be called upon to follow up on unpaid invoices। अब ये जो है ये भी काम मॉनिटर ओवर टाइम मीन्स जो कुछ भी एम्प्लॉयज है, तो अगर कुछ काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या ओवर टाइम की ज़रूरत है, किसी को वहाँ पर रुकना है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसे भी मॉनिटर करना ये भी काम ऑफिस मैनेजर का है। देन इम्पोर्टेंट फंक्शंस और रोल्स ऑफ एन ऑफिस मैनेजर। इम्पोर्टेंट फंक्शंस और रोल ऑफ एन ऑफिस मैनेजर। सिस्टम
एंड प्रोसीजर वर्क में तो हमने ऑफिस मैनेजर का रोल देख लिया, हमने कुछ जो पैराग्राफ्स थे उसमें, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है ऑफिस मैनेजर्स के, उसे भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ. ओके, as we know that it is also called as a administrative service manager. ऑफिस मैनेजर को हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर कहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे काम उसे परफॉर्म करने हैं. तो उसमें से ही कुछ जो इम्पोर्टेंट से यहाँ पर हाईलाइट किए, उसमें एक इम्पोर्टेंट है. Okay. You have one notice from Dr. Combressor. कॉम्प्रेसर का एक नोटिस है, मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी क्लास टेस्ट 19 को है. ओके, इट मीन्स सैटरडे को आपकी उनकी क्लास टेस्ट होने वाली है. फ्राइडे 17 है ना आपने, हाँ सैटरडे को. ओके, सैटरडे क्लास टेस्ट है BOM. ओके, सर ने अभी अभी मुझे बताया कि उनकी क्लास टेस्ट है, तो ये भी अनाउंसमेंट कर दो. हमारी क्लास टेस्ट कल होने वाली है. कल हमारा इस वीक का जो लास्ट लेक्चर होता है उसमें हम लेते हैं, तो इस वीक का हमारा लास्ट लेक्चर है और आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है. तो हम कल एक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं. उसके पहले मुझे एक रिमाइंडर दे दो कि मुझे जो सेकंड चैप्टर है उसके नोट्स आपको देना है. ओके, जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा तो किसी ने मुझे बताना है कि सर प्लीज अपलोड नोट्स. ओके, ओके सर. तो हम चर्चा कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट फंक्शंस और रोल ऑफ एन ऑफिस मैनेजर. तो कौन कौन सी फंक्शंस ऑफिस मैनेजर को परफॉर्म करनी होती है. स्टाफिंग फंक्शन है. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है. स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. इन वन सेंटेंस वी कैन से दैट इट इज अ मैनेजमेंट फंक्शन. ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, एंड as a manager, office managers should perform this function. Okay, an office manager is requested to recruit and select the office staff by the top management, because he is responsible for doing all office activities. It is necessary, or top management can ask him to select uh, office persons as per your requirement. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो ऑफिस मैनेजर को कह सकता है कि आपको जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आपका स्टाफ सिलेक्ट करना है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर दिस पर्पस इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड. अब अगर उसे टास्क असाइन किया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा है, टॉप मैनेजमेंट ने कहा है, तो उसे ये डिटरमाइन करना होता है कि वहाँ पर कितना स्टाफ हमें चाहिए. व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, what is their qualification, and what is the experience required for particular work or doing particular activity. All this should be decided by the office manager. For that purpose he must decide some sources of recruitment, receiving applications, conduct all the process of recruitment. It is necessary to follow all this process of recruitment. Okay, स्टाफिंग का जो कार्य है बहुत बड़ा कार्य है, जो कि इस जब अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ा अगर होता है तो वहाँ पर HR डिपार्टमेंट होता है. HR डिपार्टमेंट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. जो कुछ भी ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है आप ह्यूमन रिसोर्स को बता देते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है वो ये काम परफॉर्म करता है. लेकिन छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पर स्टाफिंग का काम भी ऑफिस मैनेजर को ही करना होता है. अगर ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय सिलेक्शन करना है, एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है ऑफिस की, तो वहाँ पर इसका रोल महत्वपूर्ण है. तो स्टाफिंग का फंक्शन भी वहाँ पर एक ऑफिस मैनेजर को करना होता है. लीडरशिप he has complete control over the work done in an office. अब लीडरशिप का कार्य भी ऑफिस मैनेजर को करना है. लीडरशिप का मतलब क्या होता है. लीडर मस्ट हैव सम फॉलोअर्स, है ना.
लीडर्स को फॉलोअर्स चाहिए। फॉलोअर कैसे बनेंगे? अगर आप सामने से लीड करोगे तो आपके फॉलोअर्स बनेंगे। तो ही मस्ट एक्ट इन फ्रंट, है ना, उसे आगे सामने से आकर काम करना है। एन ऑफिस मैनेजर इज नेसेसरी फॉर स्मूथ एफिशिएंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क इकोनॉमिकली इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Being a leader of office, he is in charge of public relation and helps other department to achieve their goals set for. Okay, जो कुछ भी गोल सेट किया है अदर डिपार्टमेंट को भी उसने सहायता करनी है, मदद करनी है, हेल्प करनी है. Okay, he is playing a role of public relation officer also. So leadership is one function. Then training. If there is a requirement of training for employee, he must do this function training. Besides the training programs, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, नए जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें भी वहाँ पर हम उनके लिए भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. और अगर कुछ ऐसे एम्प्लॉय जिनका हमने रिक्रूटमेंट किया है जो पुराने हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उनके लिए भी शेड्यूल तैयार करना, ये भी काम ऑफिस मैनेजर का है. कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर ऑफिस में भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, तो वहाँ पर जो कुछ भी अलग अलग एम्प्लॉयज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन लाना, उनको हम जैसे कहते हैं कि वहाँ पर यूनिटी क्रिएट करना, उनका काम अच्छी तरह से करके लेना, कोऑर्डिनेशन सभी में बनाए रखना, ये भी टास्क ऑफिस मैनेजर को परफॉर्म करना होता है. वर्क मेजरमेंट का काम भी ऑफिस मैनेजर को करना होता है. वर्क मेजरमेंट मीन्स व्हाट? it is nothing but it is a performance appraisal or evaluation of performance of employees. वर्क मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. जो कुछ भी एम्प्लॉयज है उन्होंने कैसा काम किया है, उनका आउटपुट क्या है, इनका मेजरमेंट करना. इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना. वहाँ पर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है या इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस है, ये काम बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये काम भी हमारे ऑफिस मैनेजर को करना होता है. Is a prime duty, or we can say that it is a role of office manager to perform this function also. And then motivation, जैसे कि हमने पहले ही इस पर डिस्कस किया, बहुत सारा डिस्कस किया मोटिवेशन पर. मोटिवेशन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई. मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग oneself or other to do some work. अगर किसी से कोई कार्य करना है तो उसे स्टिमुलेट करना, उसे बढ़ावा देने की जो प्रोसेस है उसे हम मोटिवेशन कहते हैं, है ना. तो प्रॉपर मोटिवेशन करने का काम भी हमारे ऑफिस मैनेजर को करना होता है. राइट टाइप ऑफ मोटिवेशन ensures effective and economical performance of work and lead to the promotion of the staff. Then discipline बनाए रखना, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन, किसको कब आना है, किसको कब जाना है, किसने कौन सा वर्क करना है. कोई अगर हमारे पास गेस्ट आते हैं तो उनको ग्रीट कैसा करना है, उनका वेलकम कैसे करना है, उसके बारे में कुछ डिसिप्लिन होते हैं. जैसे कि हमारे कॉलेज की भी कुछ डिसिप्लिन होती है कि कॉलेज स्टूडेंट शुड बी इन यूनिफॉर्म में आना चाहिए, ये एक डिसिप्लिन है. अगर कोई डिसिप्लिन तोड़ता है तो उसे पनिशमेंट देना या उसके ऊपर कोई एक्शन लेना, ये भी कार्य हमारे ऑफिस मैनेजर को करना होता है. ओके, देन अकाउंटिंग. इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल देन दिस टास्क शुड बी डन बाय द ऑफिस मैनेजर. देन टेशनरी कंट्रोल. ऑफिस के लिए बहुत सारे टेशनरी की जरूरत होती है ना. ऑफिस के लिए जो कुछ भी फॉर्म्स तैयार करना है उसके लिए टेशनरी चाहिए, कोई ड्राफ्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं उसके लिए टेशनरी चाहिए. लेकिन टेशनरी का जो यूज़ है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. ऑफिस मैनेजर हैज टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ऑन टेशनरी परचेज एंड इशू. टेशनरी का परचेज करने के लिए उसका कंट्रोल होना चाहिए. कंट्रोल किस प्रकार से कर सकता है? जहाँ हम टेशनरी का ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर देने के लिए हम अगर
मल्टीपल स्टेशनरी के सप्लायर्स को अप्रोच होते हैं, तो वहाँ पर हमारे कॉस्ट में रिडक्शन हो सकता है, वहाँ पर हम स्टेशनरी कॉस्ट कम कर सकते हैं। इशू में अगर हम देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम अच्छी तरह से रिकॉर्ड कीप करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग जो है अच्छी तरह से करते हैं, तो वहाँ पर स्टोर कीपर जो है, स्टोर कीपर का ये काम है कि ये अच्छी तरह से हैंडल करना। Okay, for this purpose, he has to frame a clear-cut procedure for the purchase, for the issue and storage of stationery. इसके लिए जो कुछ भी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर डिसाइड करना, इशू कैसे करना है, उस स्टेशनरी को स्टोरेज कैसे करना है, ये सभी काम ऑफिस मैनेजर को करने होते हैं। सेक्रेटरियल सर्विसेज, कुछ सेक्रेटरियल सर्विसेज होती है, जैसे कि मीटिंग्स अरेंज करना, मीटिंग्स के लिए जो कुछ भी सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट डिसाइड करना, ड्राफ्ट्स, रिपोर्ट्स तैयार करना, माइनूट्स तैयार करना, हमारा मीटिंग कैसे होने वाला है, मीटिंग में क्या क्या हमारे मीटिंग्स के एजेंडा है, इसके लिए जो कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसे माइनूट्स कहते हैं। माइनूट्स बनाना ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी। अगर सेक्रेटरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सेक्रेटरी के साथ में, सेक्रेटरी के साथ में बैठकर भी ये काम हमारा ऑफिस मैनेजर कर सकता है। इन दिस वे ही डज द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के क्या काम होते हैं? मीटिंग फिक्स करना, मीटिंग अरेंज करना, मीटिंग का शेड्यूल फिक्स करना, मीटिंग्स की जो रिपोर्ट्स है उनका ड्राफ्टिंग करना, मीटिंग्स के जो माइनूट्स होते हैं उन माइनूट्स तैयार करना, ये काम सेक्रेटरी के होते हैं। सेक्रेटरी के भी कुछ काम परफॉर्म करने का इम्पोर्टेंट फंक्शन में इन्वॉल्व है हमारे ऑफिस मैनेजर के। देन कॉस्टिंग। In a small organization, an office manager is responsible to maintain costing records and do the costing work. अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा जो ऑफिस मैनेजर है, ऑफिस मैनेजर डू ऑल दिस थिंग्स। Why costing is applied in business? Because if you want to reduce the cost, if you want control the cost, then it is necessary to apply some costing methods in your business. So इस ये भी काम हमारे ऑफिस मैनेजर यहाँ पर परफॉर्म करता है। देन ऑर्गेनाइजर, ही इज ऑर्गेनाइजर। अब ऑर्गेनाइजर करना मीन्स क्या करना कि सभी को एक साँचे में लाना, है ना। द ऑफिस वर्क हैज बीन assessed and assigned to office staff according to their knowledge। किसको कौन सा काम देना है, तो उसको वो काम असाइन करने के लिए क्या उसके पास उस काम को परफॉर्म करने के लिए नॉलेज है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसके पास वो कार्य करने का क्वालिफिकेशन है। ऑल दिस थिंग्स शुड बी कंसिडर व्हाइल परफॉर्मिंग दिस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो ऑफिस मैनेजर को ये फंक्शन करते समय ये ध्यान में रखना होता है कि कोई भी कार्य किसको सौंपना है, अगर वो सौंपना है तो क्या उस कार्य को करने के लिए उसकी एबिलिटी है, उसके पास उस कार्य करने का नॉलेज है या एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है, क्या ये कर पाएगा, इसके ऊपर उसे सोचना होता है। देन सुपरवाइजर, सुपरवाइजरी वर्क आल्सो डन बाय द ऑफिस मैनेजर। ये भी कार्य ऑफिस मैनेजर को करना है हमारे। एंड ऑफिस मैनेजर इज हेड ऑफ ऑफिस, हेंस it is the duty of office manager to supervise the office correspondence procedures, policy implementation, record maintenance, filing, indexing and the like। बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो कि ऑफिस मैनेजर को करने होते हैं। So it is a very vital place in the organization। Office manager is playing very vital role in doing all office works, or we can say that all procedural work of offices। So if you have any question, any doubt, you can ask me। Hello? No sir। Okay. So today we have finished second chapter। सर ये चैप्टर की पीडीएफ आप सेंड करो ना हमको। yes, yes। आपने अटेंडेंस दिया है? यस सर। Okay, then you can leave the meeting। I will upload notes। Okay। ओके सर।
Okay, thank you for giving reminder. No, sir.